लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी इकट्ठे भक्तों की जय। Hare Krishna. So, whosoever child makes noise, they have to come and sing here. Is it okay, children? Then you have to keep your volume low. Clear? Otherwise, come here and sing if you want to say something. Okay, you can sing one kirtan, no problem. Hare Krishna. Hare Krishna. First of all, thank you so much for coming. After a long time we are meeting, I think almost 2-3 months. 2-3 months हो गया. Thank you so much for giving your association. Otherwise, I'm sure in the last 3 months, wherever we have been interacting, we have some experiences what happens when we don't have devotee association. At least if nothing, we can feel the difference. Correct? Okay. So let's quickly do a quick recap. Then we come to we are doing the Devahuti Kapil Dev. Hindi? Okay. Hindi is okay with everybody? Prabhu ji to is now. Okay, I'll do mixed. Okay, so हो जाएगा. तो इतने दिन बाद मिल रहे हैं. Let us quickly do a recap. Okay, because we were also doing Bhagavad Gita in between. Bhagavatam से थोड़ा time हो गया अभी. तो who will recall the parampara of Bhagavatam? First it was told by Krishna to Brahma ji, Brahma ji to Narad ji to Vyasdev ji to Shukdev Goswami, and from Shukdev Goswami Sut Goswami, Parikshit Maharaj, and then Sut Goswami, Shaunak Adi Rishi. Where it was? Naimisharanya. Hey children, if you want to play, please go at the back, okay? At least don't make noise in the front, please. Okay. So this is the disciplic succession. This is a scripture directly coming from Krishnastu Bhagavan Swayam. Unadulterated. Tailvrat. There is no adulteration in that. That is why not even a comma has changed. That is why they could do Shrutidhar. They could recall all the 18,000 verses. Okay. Before we start, today we have 2 subjects to be discussed. One is, will material nature ever release me? ये जो प्रकृति है, जड़ प्रकृति, वो मुझे कभी छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, देवहूति माता ने पूछा था, पहला. एंड सेकंड इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉट नोइंग डिस्पाइट नोइंग. थोड़ा टंग ट्विस्टर है. मतलब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे नहीं पता है, हालांकि पता है. प्रॉब्लम ये है. So second question which देवहूति माता ask is that. दूसरा क्वेश्चन जो देवहूति माता पूछती हैं वो इस पे पूछती हैं कि जिससे कि ये याद रहे कि मुझे जो पता है वो पता वाकई में रहे, क्योंकि जो पता है वो पता नहीं रहता. We know but actually we don't know, or we do not know. The problem of not knowing despite knowing.
These are the two subjects which we will do. Like literally knowing and not realizing what we know. 100%. You hit it right. Literal terms we know. For example, I am saying all this. Tomorrow morning you will meet me. You will say, Prabhuji, what are you talking today? You have forgotten what you are telling. This is the problem. So, the problem of not knowing despite knowing. This is the biggest problem. This Kunti Mata will ask something to solve this problem. Kunti Mata ये बात पूछेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. तो कैसे आदमी भूल जाता है एकदम से. बेसिकली इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ, इट इज forgetfulness, isn't it? That is what the problem is. So once what happened, Sudama ji had met Krishna ji in Dwarka. So next day morning they were going to take bath in Dwarka, in the Gomti river. Gomti river में नहाने को जा रहे थे. तो बातों बातों में सुदामा जी was a pure devotee. उन्होंने कहा, कृष्ण जी आपका माया का सब लोग इतना बोलते हैं, आपका मटेरियल नेचर इतना अटैक करता है, इट इज सो फियर्स, थोड़ा when you get some time please enlighten me also on Maya. He said okay, let's take bath, after that I can tell you. Don't worry. So he took bath. The moment he took bath, he went into one beautiful city inside the water, and there also there was one Swayamvar was happening. One beautiful king's daughter, she was doing Swayamvar, खुद का चूज करने के लिए, शादी के लिए. तो सुदामा जी ने देखा तो he immediately got attracted, and then he also sat there, and interestingly he was chosen as the bridegroom. तो शादी हो गई अब उनकी, बच्चे हो गए उनके, बच्चे बड़े होने लग गए. But in the middle age, one day what happened? The wife passed away. जो उनकी जो पत्नी थी जिससे शादी हुई थी, राजकुमारी, उसका देहांत हो गया. अब there is one problem. In that city there was a rule. जैसे पहले रूल होता था सती प्रथा का, बहुत पहले, कि भाई हस्बैंड नहीं है तो वाइफ वॉज इंसिस्टिंग, नॉट फोर्सफुली, I must also go. But there was a rule in that city, other way round. If the wife dies, the husband has to also be cremated same time. Sudama ji, now he has to be cremated. Now what to do? So who can Sudama remember? So he remembered Krishna. Krishna, what is this you are doing? Where am I? Immediately he came out of the water. It was just maybe 5 minutes. He said, what is this? He said, this is my Maya. This is what you wanted to know. So you remember, after creation, even Brahma ji was running behind his daughter. So if this can happen at, so what to, I mean, better keep quiet, not to speak only. This is the situation. So, after Bhagavatam comes to Shukdev Goswami and Parikshit Maharaj, he asks, what's the question he asks? Just we are revising a little bit, just to coming to the Devhuti Mata's topic. What is the question he asked? हाँ, अतः पृच्छामि संसिद्धिं. Hey, hello, children. Either you sit or complete behind. Okay. It's a story only. You can sit and listen to the story. Only the name is Bhagavatam. Otherwise, it's a katha only. Right? So, atah pritchami samsiddhim yoginam paramam guru. You are the gurus of the gurus. So, you please tell me what? पुरुषस्य ही यत् कार्यम. पुरुष का क्या कार्य है? पुरुष या स्त्री का कार्य का क्या कार्य है? कौन से पुरुष स्त्री का? म्रियमाणस्य सर्वथा. वन हु इज गोइंग टू डाई. उसको क्या करना चाहिए? तो क्या जवाब दिया था जी उन्होंने? इंग्लिश, हिंदी, फाइन. 215. हाँ,
तस्मात्, therefore, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताव्यम. Because fear of death is, everybody has that. No matter what anybody can say, there is fear. He said, you want to be fearless, then do these three things. But interestingly, then who was sitting there listening? And then he was traveling after maybe 1000 years, and then he met Shaunakadi Rishi. And what was the 6 questions which were asked? Anybody? Ekantata Shreya, fantastic. Essence, yeah, yenatma, yeah. Yat saram yenatma suprasitati. Where dharma will take shelter. Why Krishna has come, yes. Then Leela, And his Leela. 6 questions. So somebody can say, there the question was different, here the question is different. What is the connection? Correct? Those questions, Parikshit Maharaj did not ask these 6 questions. He asked according to his situation. Here they are not asking this question, they are asking 6 questions. But if you see, the answer to both is the same. Yes, wonderful Mataji. See, let's see how. Ekantata Shreya. What is Ekantata Shreya? Shrotavya, Kirtitavyascha, Smartavyascha, Chatavya. 3 cheez karo, that is the Ekant. That is the ultimate devotional service. Second, Yat Saram. सब चीज का सार क्या है? वो भक्ति है. There also Shrotavya, Kirtitavya, Smart. These 3 things is equal to devotional service. Next, purpose of Krishna's appearance. Whole Bhagavatam, again devotional service. Again, if you hear, then Ichchata Abhayam. Krishna's incarnations, Krishna Leelas, and where did it take shelter? It took shelter to Srimad Bhagavatam. And that is what Shukdev Goswami also. So both are same. So we have reached up till here. Okay. Let's see. See, क्या है? A good teacher, they will try to make the concept understand rather than focus on learning. Krishna does the same thing in Bhagavad Gita, in Bhagavatam also. If you look at it, in one word it is devotional service. But in so many ways it is being advised so that understanding can come and we can then revive our forgetfulness. That is what. Actually speaking, any activity done which is not connected to Krishna will cause pain and problems. This is, we can try this, huh? If you want to. Better not try. But if you try doing something, we all have experience. Where it was not connected, there was a challenge. Anyway. So, hey, shh. I think what you do is you can go out. Because there is a barricade for the swimming pool. So you are safe. But take care of the plants. You can go out. no problem. Huh? Not send Here? yeah. Okay. So if you make noise, you will be sent out. Okay. So question number 1. Actually, I should arrange for some drawing material. Mataji used to bring, I think, but we have to revive that, yes. That was keeping them well engaged. That was very good. Okay. See, ultimately it points back to me only. That why the painting things are not available. Okay. So now, in the 3rd canto, we see that Kardam Muni marries Devhuti Mata. And this is, and Kardam Muni had already, because he is one of the Prajapatis. Prajapati means the one who is going to expand the population in this universe. Prajapati. So he is one of them. But he is a very realized and a pious soul. So first he prayed to Lord Krishna. And then when he appeared, he said, I will do the creation part of it. But after that, please allow me to leave this material world and I want to go to the forest.
You remember why he did not, even though Kapil Muni is Krishna himself, but he left and went. Why? He should have stayed, right? What is the use of going out and then doing something on his own? Because he was not a Goshti Anandi. He liked to be alone as per the Vedic. So everybody has different tastes. There is nothing wrong in it. Okay. So when he was about to go, Devahuti Mata said, what will happen to me? And then at that time actually Krishna had also blessed that I will come in your womb and I will take care of you. You don't worry. So after Kardam Muni leaves for the forest, Devahuti Mata asks questions. Those are the questions which we are going to deliberate today. First is, question number 1, she asks, does matter ever release the spirit soul? Is the separation possible? So, okay, on your, this one I've sent the PPT. If you want, you can open it. Otherwise, you can repeat after me. Devahuti Ruvacha Purusham Prakritir Brahman Na Vimunchati Karhichit Annonya Apashyatyach Nityad Anayoh Prabhu. So now Devahuti Mata is asking Kapil Bhagwan, Purusham Prakritir Brahman Na Vimunchati Karhichit. The Purush here is the spirit soul, the Atma. जो आत्मा है वो पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मर. प्रकृतिर material nature, because हम सब उसी से mixture से ही बने हुए हैं. She is saying न विमुंचति करहिचित. क्या ये possible है कि ये दोनों अलग हो जाएं? Is it possible that these two can be separated? Vimunchati karhichit. Is it ever possible? Anyonya apashatya. Because they are completely attracting to each other. It is there in their nature to get attracted. नित्यवात मतलब आदि काल से जड़ और चेतन जो है वो दोनों अट्रैक्टेड हैं. सो क्या ये पॉसिबल है? न विमुंचति करहिचित. माय डियर ब्राह्मण, डज मटेरियल नेचर एवर गिव रिलीज टू द स्पिरिट सोल? सिंस वन इज अट्रैक्टेड टू द अदर एटर्नली, हाउ इज देयर सेपरेशन पॉसिबल? पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा. जिनके पास एक्सेस कर सकते हैं, यू आर एबल टू गेट द स्लाइड, राइट? ओके. प्रभु जी, ये यस, जड़, चेतन and prakriti, यस, and then Brahman and Shakti. Yes. All these resemble the same thing. so when we say material nature is made up of 8 elements. Bhumi, रापो, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, रेवचा, अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा. जो प्रकृति है वो 8 प्रकार की चीजों से बनी है. भूमि, आपो जल, भूमि रापो अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार. ये जड़ है, इनसे सुपीरियर स्पिरिट सोल है. इनके दोनों के मिक्सचर से हम आप बने बैठे हैं. पूरी प्रकृति इन्हीं से बनी हुई है. ये कंप्लीटली जड़ है, हम में जड़ चेतन दोनों है. अब ये हमारी बात हो रही है, बिकॉज कुत्ते तो इस बात को नहीं डिस्कस कर सकते, बिल्लियां नहीं डिस्कस कर सकते. पर हमारों को भगवान ने नॉलेज दिया है कि जब तक सांस चल रही है इस इंफॉर्मेशन को जान लिया जाए. क्योंकि ये भी एक तरह की भूल है कि ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा दिमाग में कि क्या है. that's one of the problems. So उन्होंने इसलिए अपने लिए और बाकियों के लिए ये क्वेश्चन पूछा. अपने लिए तो खैर she was what to speak, कि भाई ये सेपरेशन पॉसिबल है कि नहीं है. हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी ये कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है. सोल का अपना अलग ही वो चल रहा है, बॉडी अलग चल रही है. माइंड बोल रहा है आई एम स्टिल यंग बट बॉडी इज नॉट कोपिंग अप. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना अपना, तो इसलिए इन चीजों में देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? पढ़ना एक चीज है,
अब एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं कि भाई भागना चाह रहे 25 साल पहले वाली स्पीड से नहीं भाग पा रहे ना, है ना प्रॉब्लम। लेकिन माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है क्या? माइंड तो अभी भी उसी स्पीड से भागने की कोशिश कर रहा है। यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया टुडे बिकॉज ऑफ द वर्क स्ट्रेस, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। Such a valuable life, they are giving it up only because this is called social engineering. Glorifying, if you work 12 hours, 14 hours, it's fantastic. अरे भाई अगर भगवान को चाहिए होता 12-14 घंटे काम करना तो गधा बनाते थे, आदमी क्यों बनाया? What is the use? अगर बोझा ही ढोना था सुबह शाम तो हमें आदमी क्यों बनाया? गधा बनाते थे। कुछ तो सोचा होगा। एनीवे, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन पूछा जी देवहूति माता ने कि क्या पॉसिबल है कभी जो पुरुष प्रकृति यानी कि जो जड़ और चेतन का जो ग्रंथि पड़ी हुई है ये कभी सेपरेट हो सकती है क्या? या चेतन को लगता रहेगा मैं जड़ ही हूं? बिकॉज मैं तो यही सोच रहा हूं आई एम द बॉडी। आई कैन से फ्रॉम माउथ आई एम नॉट द बॉडी, but at 9 p.m. when I am feeling hungry, that time I will not remember I am the soul. फिर तो प्रसाद चाहिए। ये प्रॉब्लम है। Now, this is the first question. So Krishna answers, Kapil Bhagwan answers this. Shri Bhagwan Uvacha. See how the wordings are. Animitta, Nimittena, Swadharmana, मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम। तो भगवान ने आंसर देना शुरू करा कि भाई ये रिलीज पॉसिबल है कि नहीं है। सो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा अनिमित्त। निमित्त का क्या मतलब है? नहीं, निमित्त मतलब निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्त। हाँ निमित्त। और अनिमित्त, हाँ बिना मोटिव के क्या करना है? निमित्तेना। क्या मतलब संस्कृत है, मतलब विदाउट डिजायरिंग द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज। अनिमित्त निमित्तेना, किस लिए काम कर रहा है? कि कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। अनिमित्त कर रहा है, निमित्त मात्र, कर तो रहा है काम लेकिन अनिमित्त है, मतलब कुछ चाहिए नहीं उसको। भगवान ने बोला जो ऐसे काम करता है स्वधर्मेण, जो अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऐसे करता है विदाउट डिजायरिंग द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज, अमल आत्मना विद प्योर माइंड। एक तो ये अपना ड्यूटीज करता है बिना हाँ मतलब इसलिए भगवान की सेवा के लिए करता है जो ड्यूटी करता है। दूसरा तीव्रयामयी भक्त्या, तीव्र भक्ति करता है। श्रुत संभृतया चिरम, जो लॉन्ग टाइम तक मेरी तीव्र भक्ति करता है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, इफ वन ऑफ यू वुड लाइक टू रीड 3:27-21। Supreme Personality of Godhead, this is the one purpose. Yes. The Supreme Personality of Godhead said, one can get liberation by seriously discharging devotional service unto me and thereby hearing for a long time about me or from me by thus executing one's prescribed duties in Krishna consciousness. There will be no reaction and one will be freed from the contamination of matter. So one who discharges his duties in devotional service for me, somebody who does duty for me and keeps hearing for a long time, does prescribed duty in Krishna consciousness, there will be no reaction to it. Hare Krishna, please. There will be no reaction and one will be freed from the contamination of matter. तो अब देखिए होगा क्या? If somebody is doing prescribed duties in devotional service, what actually will happen? What is Krishna telling? What will happen? I have one doubt. Yes. What is the logic for this long time? What exactly meaning about this long time purpose? मतलब नित्यम भागवत सेवया, जो हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज मूड आया तो या पांच भागवतम पढ़ लिया फिर अपना छोड़ दिया फिर दूसरा। देखिए ऐसा है, अगर एक घड़ा है, उस घड़े में आप
जोर का नलका चला के भरना चाहें, लेकिन अगर उसमें छेद है तो भरना असंभव है। लेकिन अगर उसमें छेद नहीं है और भले ही आप एक एक चुल्लू पानी डाल रहे हैं तो एक दिन तो भर जाएगा। सिमिलरली नित्यम भागवत, थोड़ा थोड़ा रोज, थोड़ा थोड़ा रोज, और छेद क्या है? नॉट फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। वो 4 प्रिंसिपल अगर इंटॉक्सिकेशन ले रहे हैं, मीट खा रहे हैं, या फिर नहीं, 4 अपने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, अपना इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, ये 4 चीज करते जा रहे हैं और साथ में ये भी करते जा रहे हैं, तो अब घड़े में छेद है। सो हाउ इट विल फिल अप? तो वो कह रहे हैं पहले तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी मेरे लिए करो, तो जब ये करेगा तो 4 चीज छूट ही जाएगी, क्योंकि उसको मजा ही नहीं आएगा उसमें। अब दूसरा क्या होगा कि उसका जो रिएक्शन है दैट विल नॉट कम टू मी, क्योंकि जो जिसके लिए काम करता है रिएक्शन उसे ही मिलता है। भगवान के लिए काम कर रहे तो रिएक्शन वहीं जाएगा। अब जब रिएक्शन नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली मैटर से मैं दूर हो गया ना, क्योंकि रिएक्शन इज मेड ऑफ मैटर ओनली। अब वो मुझे मिल नहीं रहा। प्रभु यहाँ पे उसको कॉन्टिन्यूस यानी निरंतर भी तो वर्ड यूज कर सकते थे ना? कर सकते हैं, जैसे हर श्लोक में हम लोग यस यस, उसके कई वर्ड हैं। देखिए, निरंतर एक है, नित्यदा, सर्वत्र सर्वदा, चिरम, देयर आर मेनी वर्ड्स फॉर द सेम वन। तो जिसका जहां पे उनको आनंद आया उस हिसाब से उन्होंने उसको लगाया। मतलब यह है कि भगवान का नाम गुणगान स्मरण करता रहे और अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करता रहे, तो ये डिटैचमेंट अपने आप हो जाएगा। क्यों? उसके 2 रीजन है। एक तो मटेरियल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। रिस्पॉन्स कौन सा आएगा? स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स आएगा, हीट वाला नहीं आएगा। इस मैटर का रिस्पॉन्स, वही पैसे आएंगे पर उसमें वो हीट नहीं रह गई। जैसे जो सांप होता है, जब उसका जहर निकालना होता है तो उसका जो जहर वाला दांत होता है, हरे कृष्णा, उसका जो जहर वाला दांत होता है उसको तोड़ दिया जाता है। अब वो है वो सांप ही, लेकिन अब उससे नुकसान नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब भगवान का कार्य अगर कर रहा है ड्यूटी समझ करके, तो 2 चीजें होंगी। इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, एक तो मटेरियल रिस्पॉन्स नहीं आएगा, भले ही वो दिखने में मटेरियल है लेकिन नहीं है वो मटेरियल। जैसे युधिष्ठिर महाराज और जितने भी पांडव थे, भागवतम सीरियल में उन्होंने दिखाया कि वो जी एक एक करके उनकी बॉडी चली गई। ये गलत है। भागवतम क्लियरली टेल्स इन द सेल्फ सेम बॉडी दे रीच्ड गोलोक। तो कैसे पहुंच गए? दिखने में तो मटेरियल बॉडी थी, बट इट वाज कन्वर्टेड इनटू, इट वाज स्पिरिचुअलाइज्ड। व्हेन यू गो टू वृंदावन, ऋषिकेश, समवेयर, यू गेट सम काइंड ऑफ अ फीलिंग। वो क्या है? दैट इज बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज चार्ज्ड विद दोज थॉट एटम्स, सो इट चेंजेस योर थॉट, बिकॉज दैट इज नॉट मैटर, सो कन्वर्जन हैपेंस। सो सिमिलरली कृष्णा के लिए काम किया, रिटर्न में एक तो आपको, और कृष्णा के लिए काम करने का मतलब क्या है? सुबेरे उठे बोले आपका काम करने जा रहे हैं, बल्कि ये भी कह देना चाहिए अगर, और शाम को बोल देना चाहिए जी आपके लिए काम किया, और ये भी बोल देना चाहिए अगर भूल गया ये कहने से तो आप अपने आप ही ले लेना। क्योंकि भूल सकता है आदमी, भूल सकता क्या है? भूलता ही है। एक्चुअली भगवान को हमेशा याद रखना सबसे बड़ी। एनीवे, तो पहली चीज तो ये हो गई कि अगर किसी ने भगवान के लिए कार्य किया, कार्य वही है, घर में खाना पकाना, झाड़ू देना, ऑफिस जाना, जो भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करना, जो करना है करो। लेकिन वहां पे भी तो सारे जो भगवान के सोल बैठे हुए हैं, उनको बताने की जरूरत थोड़ी है कि आप ये हो। खुद ही याद दिला लिया कि भैया ये लोग बैठे हैं, भगवान के अंश बैठे हुए हैं, इनके लिए जा रहे हैं सेवा करने, तो भगवान का कार्य हो गया। तो जो उसका रिटर्न आएगा उसमें हीट नहीं होगी। अब कोई कह सकता है कि इसका क्या प्रूफ है? भाई करके देखो। इसके लिए तो कोई और आंसर है नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? जब डिवोशनल सर्विस करेगा तो धीरे धीरे मैटर से उसका टेस्ट उठता जाएगा। जैसे पहले अगर मीट खाना अच्छा लगता था, अब भक्तों के संग में जा रहे हैं कहीं तीर्थ या भागवतम सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा ही नहीं लगेगा खाना।
तो दूसरा दो चीज होंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, जो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था जी? थैंक यू वसंत प्रभु। You know, in Kerala I heard that those lot of labor, they make bidis. Bidi, you know, cigarettes, hand rolled bidi. But they want to know the news, what is happening in the world. I think Prabhuji knows. Okay, so what they do is, one person sits with the newspaper and 50 people are rolling the bidis, and he is reciting the newspaper. In the end, everybody gives 10% share of their bidis to this person. भाई आपने नहीं बनाया, आपने सुनाया। तो जब भगवान के लिए क्या क्वेश्चन था जी? देवहूति माता ने क्या क्वेश्चन पूछा है जी? हाँ, जो जड़ और प्रकृति है, मैटर और स्पिरिट सोल, क्या ये कभी अलग हो भी सकते हैं? मुमकिन है क्या? ये क्वेश्चन है। आंसर में भगवान ने बोला हाँ मुमकिन है। मुमकिन ही नहीं है, ऐसा है, होगा। उसके लिए क्या करना है? दो चीजें करनी है। पहली चीज, अपना काम, ड्यूटी जो भगवान ने जो भी वर्ण आश्रम के हिसाब से दिए, गृहस्थ आश्रम, वो कार्य अच्छे से करना है, भगवान को समर्पित करते हुए। सुबह बोला आपके लिए, शाम को बोला आपके लिए, कर दिया, पहली बात। और दूसरा, भगवान का नाम गुणगान स्मरण करने से भक्ति से टेस्ट चेंज होगा। तो पहली चीज से मैटर का रिएक्शन नहीं आएगा तो मैटर छूट जाएगा। दूसरे केस में जब डिवोशनल सर्विस करेंगे तो क्या होगा? टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो मैटर अपने आप छूट जाएगा। एक्चुअली में पहला और दूसरा सेम ही है, लेकिन फिर भी, क्योंकि जब भगवान के लिए कार्य करेगा तो डिवोशनल सर्विस की। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चंस, डाउट्स? समय क्या हो गया प्रभु? फिर अगला क्वेश्चन ले उसी हिसाब से। 9 o'clock, we have 15 minutes. Okay, fine. Okay. अब anybody recalls, जो डिवोशनल सर्विस है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी हो गई। अब डिवोशनल सर्विस जो है वो कितने तरह की बताई गई है? इफ एनीबडी रिकॉल्स? 9, वंडरफुल, 9 into 9, 81. So we will just do a refresher, because this information, I don't know about other scriptures, but in Bhagavatam it is given. So 9 कौन कौन सी भक्ति हम लोग कर सकते हैं? पहला बोलिए जी, हियरिंग, चैंटिंग, देन श्रवणम, नहीं, स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, फिर वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। तो ये 9 हो गई नवधा भक्ति। जैसे शबरी के थी, उसने बोला मुझे तो कुछ, शबरी का आपको पता है, शबरी के केस में जब भगवान रामचंद्र जी आए, क्योंकि वो नीची जाति से थी, सनातन धर्म में कास्टिज्म की कोई जगह है ही नहीं। लॉर्ड रामचंद्र showed at that time in Treta. When he came, people wanted to do, but he showed it. जब वो वहां पे आए तो वहां पे शबरी को एक अलग जगह दे रखी थी। वो मतंग ऋषि की डिसाइपल थी। मतंग ऋषि जब जाने लगे तो वो रोने लग गई कि अब मेरा क्या होगा। तो उसने बोला चिंता मत करो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हारे पास आएंगे भगवान राम, तुम एक जगह बैठो आराम से, भगवान का नाम लेते रहो बस। उसने कहा ठीक है जी। तो वहां पे जो पंडित लोग, मतलब जिनको रटे रटाए श्लोक, अभी रटे रटाए श्लोक बोलने से भाई, पंचांग में लिखा है कि इस वर्षे 100 इंच बारिश होगी, लेकिन पंचांग को निचोड़ो, एक बूंद नहीं टपकती उसमें से। इसलिए रटे रटाए से कुछ नहीं है। हाँ, फिर भी रटना चाहिए, किस लिए? अर्थ समझने के लिए। तो उन लोगों ने उसको बोल रखा था कि तुम अपने वहां पे रहना, और ये वाला जो पॉन्ड है इसमें नहाने मत आना, तुम्हारे लिए अलग एक जलाशय है, तुम वहां पे नहाया करना। तो वो नहाती थी वहां। अब राम जी आए, वो जा रहे थे सीधा कुटिया की तरफ शबरी की, तो उन लोगों ने पकड़ लिया राम जी को, जो बड़े बड़े वेद ज्ञानी थे। उन्होंने कहा महाराज ऐसा है, हमारे को एक स्किन डिजीज हो गई है, आप इसका इलाज बताते जाओ। तो उन्होंने कहा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक काम करो, जिधर शबरी स्नान करती है उसमें जाके आप स्नान करो। तो
तो आपकी स्किन डिजीज ठीक हो जाएगी। तो ये है भगवान की भक्ति का प्रकार। तो जो ये 9 तरह की है, भगवान ने उसको बोला तुम्हारे 9 भक्ति है तुम्हारे पास। अब 81 कैसे होगा? 9 तो ये हो गई। अब एक है जी तामसिक भक्ति, भी तामसिक, राजसिक और सात्विक हो सकती है। जो तामसिक है उसके अंदर एनवी से, प्राइड से और एंगर से, अगर भगवान का नाम ले रहा है गुस्से में तो तामसिक भक्ति, अगर वो ले रहा है एनवी से तो भी तामसिक। जैसे रावण है, जितना वो भगवान राम को याद करता था शायद ही कोई करता होगा। कंस भी जितना वो भगवान कृष्ण को याद करता था, नोबडी वुड रिमेंबर लाइक दैट। 24 घंटे उसको भूत सवार अब आ रहा है मारने लेकिन भक्ति कौन सी? तामसिक। तो प्राइड, एनवी और वॉयल, एंगर, अगर इनसे 9 भक्ति करता है तो ये 9 3 27। ठीक है जी, क्लियर है? दूसरा राजसिक, नेम फेम के लिए, चलो जी बड़ा स्टेज प्रोग्राम करेंगे, नाम होगा। तुलसीदास जी ने बोला है रामचरितमानस में, जो नेम फेम है वो ऐसे है जैसे कोई बहुत ही सुंदर कन्या है पर उसके शरीर से बदबू आती है, ये नेम फेम है। अगर सुंदर कन्या है, एवरीबडी वुड लाइक टू एसोसिएट विद हर, लेकिन भयंकर बदबू आ रही है तो क्या होगा? ये तो अगर फेम के लिए, पावर के लिए और सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए अगर भक्ति की जा रही है तो 9 into 3 एक और 27 हो गया। कौन कौन से है जी? फेम, पावर एंड सेल्फ एंजॉयमेंट। तीसरा सात्विक भक्ति क्या है? गेटिंग रिड ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। भैया बहुत हो गया, अभी माफ करो, अब इससे बचाओ। एक। दूसरा भगवान की भक्ति एज अ ड्यूटी करना, और तीसरा अपने पापों के नाश के लिए करना। पर ये तीनों सात्विक है क्योंकि इसमें वो अपना उद्धार चाह रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं है। तो ये 9 into 9 is equal to 81. 81 types of devotional services are there. Any question, doubt? Because मुझे नहीं पहले पता था. I just read it in Bhagavatam, so I thought it is. कंपटीशन वाले राजसिक आएगी, तामसिक। कंपटीशन एनवी हो गया, वो तो तामसिक हो गई। एक्चुअली क्या है, दैहिक जो 3 तरह की जो वो है सत्व, रज और गुण, वो तीनों फाइट कर रहे हैं बॉडी के अंदर एवरी डे। अब जिस तरह की एसोसिएशन है वो वाला गुण हावी हो जाता है। अब अगर आप रोज सुबह उठ करके भगवान का नाम ले रहे हो, दर्शन कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, तो वो गुण हावी रहेगा। अभी सुबह उठते ही अगर न्यूज़पेपर देखा कि भाई फाइटिंग कहाँ कहाँ हो रही है, तो फिर वो गुण हावी रहेगा। इस तरीके से तो 81 टाइप ऑफ भक्ति है। तो आंसर हो गया, और कौन सी भक्ति हो गई। लेकिन इन सब के ऊपर क्या है, वो कौन सी है जी? बोलिए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हाँ जी, सवै पुंसां परो धर्मो, सब लोगों का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की भक्ति करना। चलो भगवत प्राप्ति के लिए ना सही, अपना दिमाग ठीक रखने के लिए सही, थोड़ा दिमाग ठंडा रखने के लिए सही, थोड़ा दिमाग को आनंद, ठीक है सात्विक और शुद्ध सत्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी मटेरियल से तो बेटर ही है ना। जो इसमें है, जो भक्त तामसिक भी कर रहा है, वो मटेरियल से तो बेटर ही है, कम से कम भगवान के रास्ते में तो लग गया, एक दिन ऊपर जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। ओके। अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु मतलब कोई हेतु नहीं है, बिना सेल्फिश। और अप्रतिहता कंटिन्यूअस। दीज 2 थिंग्स, अगर कोई जना भगवान की भक्ति ऐसे कर रहा है कंटिन्यूअस और विदाउट मटेरियल मोटिव, देन यह आत्मा सुप्रसिद्धति, देन कंप्लीट सेटिस्फैक्शन तभी मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता है। ये है ये। तो आई थिंक सेकंड क्वेश्चन अभी क्या बच गया प्रभु?
नहीं नहीं तो फिर 5 minutes. सोनू जी, you'll do कीर्तन 5 minutes. Want to do 5 minutes कीर्तन? Yes. Okay. So let us summarize very quickly. भागवतम सबसे पहले किसने बोली जी? Very quickly let's summarize. फिर कृष्णा के बाद, ब्रह्मा जी के बाद, नारद जी ने किसको सुनाई? व्यास देव जी ने किसको सुनाई? सुखदेव जी ने किसको सुनाया? वहां पे परीक्षित महाराज और कौन बैठे थे? सूत गोस्वामी बैठे थे, और उन्होंने फिर शौनक आदि ऋषियों को सुनाई. इसके अलावा मैत्री मुनि और वो अलग है, और इसके अलावा शेषनाग और कुमारस भी सुना रहे हैं. पर ये है, ये परंपरा है इस तरीके से. और क्या क्वेश्चन पूछा था? फर्स्ट क्वेश्चन कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और उसका आंसर क्या है जी? क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, इच्छिताव्यम. ये 3 चीज करनी चाहिए. और फिर 6 क्वेश्चन. ये ना आत्मा ये सुप्रसिद्धति, अगर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन चाहिए तो और कोई रास्ता नहीं है. अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं और कुछ करने के लिए, लेकिन थोड़े दिन में पता पड़ता है कि वापस ठंडे पड़ गए. तो ये हाँ प्रभु जी, क्या है? एग्जैक्टली खाली 7 दिन है. मेरे पास भी 7 ही दिन है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सटीक, हाँ, एक बार में बता ना, घुमाना फिराना नहीं. बिल्कुल सही बात. चलो जी 5 मिनट कीर्तन, अंदर नमस्ते नरसिम्हा. बच्चा लोग कीर्तन के लिए आ जाओ फटाफट सामने. यस प्रभु जी. अगर हम उसको ड्यूटी समझ के करते तो पूर्ण में रहेगा. ड्यूटी में दे रखा है, वो सात्विक हो गया. ड्यूटी अगर हम नहीं नहीं, सात्विक से ऊपर जो भक्ति है वो अपने लिए नहीं की जा रही, भगवान की प्रसन्नता के लिए है. आपको सुबह उठ करना ही है. हाँ, तो सात्विक तो हो ही गया. अब फिर भगवान धीरे धीरे देंगे कि भाई जो गोपियों का भाव है वो ड्यूटी समझ के नहीं करती थी, वो इसलिए करती थी कि भगवान को आनंद मिले. ये शुद्ध भक्ति है. पहली 3 में मुझे कुछ चाहिए, या नेम फेम चाहिए, या गुस्सा आ रहा है, या कुछ चाहिए, या प्रॉब्लम चल रही है, उसमें मेरे को, लेकिन उसमें भी सात्विक इज नॉट इजी टू बी इन सात्विक मोड, क्योंकि उसके बाद ही शुद्ध सत्व है. चलो भाई, पहले विल डू हरिनाम संकीर्तन. ओके.